آج جج صاحبہ نے جو پٹیشنز دی گئی تھیں کہ یہ کیس اس عدالت میں نہیں چل سکتا، اس میں میری پٹیشن نہیں تھی، لیکن جو باقی 3 کو ایکیوزڈ ان کی پٹیشن تھیں کہ جو یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا اس عدالت میں، تو انہوں نے منظور کر دی ہے اور یہ کیس اب کہیں اور بھیجا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج اس عدالت میں 3 سال سے زیادہ ہو گئے کہ اس کیس کو چلایا جائے۔ میری پہلے دن سے درخواست تھی، آج بھی یہ درخواست ہے کہ یہ کیس چلائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ ان کیسوں میں کیا ہے اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ 3 سال سے ہم یہاں پیش ہو رہے ہیں، نہ نیب آتی ہے نہ گواہ آتے ہیں۔ جو گواہ آئے ہیں انہوں نے کوئی 1-2 گواہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی بات ہمارے خلاف نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ تو آج سوال یہ ہے، اور یہ چیئرمین نیب صاحب جو نئے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ ان معاملات کا ازالہ کیسے کریں گے۔ یہ جو جعلی کیس آپ نے بنائے ہیں، آپ کے ادارے نے بنائے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ ہوگی ان انویسٹیگیشن آفسر سے کہ آپ نے کس بنیاد پر کیس بنائے تھے، یا آپ دباؤ میں کیس بنائے تھے، یا یہ سیاسی کیس تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ جس کیس کا نہ سیر ہو نہ پیر ہو، اور یہ وہ کیس ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا اس کیس کے بارے میں، اگر اس کو پڑھ لیا جاتا اسی دن، تو یہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ واضح حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ کے آغا صاحب کا ڈبل بینچ جو تھا، جس نے ریٹن فیصلہ دیا کہ اس کیس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ فیصلہ پڑھ لیا جاتا تو یہ کیس بن نہیں سکتا تھا۔ 3 سال یہ کیس چلتا رہا، ادارے کا وقت بھی ضائع ہوا، ہمارا بھی وقت ضائع ہوا، آپ حضرات کا وقت بھی ضائع ہوا، اور تاثر عوام میں یہ جاتا ہے کہ بہت بڑا کیس ہے، پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا ہے، کون سی کرپشن ہو گئی ہے۔ حالانکہ پہلے دن یہاں بھی کہا گیا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ تو میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتا دیں وہ کون سی ہماری اتھارٹی تھی جس کو ہم نے مس یوز کیا ہے، یا اس کا کوئی جواب نہ نیب دے پائی ہے نہ عدالت میں کوئی گواہ دے پایا ہے کہ یہ الزام کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ 3 سال سے جو 4 لوگ اس کیس کے اندر تھے ان کی زندگی مفلوج تھی، نہ نوکری کر سکتے تھے نہ کاروبار کر سکتے تھے۔ ان کی بدنامی جو اخبارات میں ہوتی تھی وہ علیحدہ ہے، جو ان کا مالی نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا، جو ذہنی انتشار ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا، جو ان کی بدنامی ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا۔ تو نیب کم از کم معافی مانگ لے، اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ جعلی کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں یار ہم سے غلطی ہوگی، ہم دباؤ میں تھے۔ اب یہ پتہ نہیں دباؤ کس کا تھا۔ عمران خان صاحب تو اس وقت دعوے کرتے تھے کہ میں نے فلانے آدمی کو گرفتار کروایا ہے، بڑے مجمع میں جلسوں میں کہتے تھے، نام لے کر کہتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، وہ باجوہ صاحب کرواتے تھے۔ تو باجوہ صاحب بھی یہ بات ماننے سے تیار نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپس میں طے کر لے کہ کس نے کیا کروایا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ان کے معاملات کا ازالہ کون کرے گا، صحیح بات، ان باتوں کا جواب کون دے گا۔ تو آج چیئرمین نیب کی یہ اگر قانونی نہیں تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یہ کیس بنائے کیوں گئے، کیوں حد تک کی گئی لوگوں کی عدالتوں میں بلا کر، کیوں ان کی زندگیاں مفلوج کی گئیں۔ تو کم از کم ایک معذرت ہی کر دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو آج بھی کہتا ہوں، چیئرمین نیب صاحب سے کہتا ہوں کیس چلا لیں اور کیمرے لگا کر چلائیں۔ جس طرح ہم یہاں کھڑے ہیں آج، تو کیمرے عدالتوں کے اندر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کیسوں میں ہے کیا۔ ہم عمران خان طرح چھپنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیس چلاؤ۔ ہم نے کبھی بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا، ہم نے کبھی ریمانڈ سے گھبراہٹ ہم نے نہیں دکھائی، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے
घर में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती, अदालतों में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती। तरीका ये होता है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगा है और आप समझते हैं कि गलत है तो फिर सामने जो करना है कर लें। किसी रिमांड लेना है, जुडिशल भेजना है, जेलों में भेजना है, जो करना है कर लें, क्योंकि आपके हाथ साफ होते हैं तो आप इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। और आज मुल्क जिस इंतशार में है ये इन्हीं मामलात की वजह से है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर आज आप एक चीज़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, जो इदारा इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो हुकूमत के निज़ाम को मफलूज करता है, वो नैब का इदारा है। कोई अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है। वाज़े फैसले होते हैं, अरबों खरबों का मुल्क का मामला होता है, लेकिन अफसरान समरी लेकर नहीं आते, अफसरान फैसला नहीं करते, काबीना फैसला नहीं करती, काबीना की कमेटियां फैसला नहीं करती, तो मुल्क कैसे चलेगा? हर आदमी सवाल करता है जी वो ये करप्शन हो गई, वो करप्शन होगी। करप्शन पकड़े ना अगर करप्शन हुई है, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती है कि अगर ये इदारा रहा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि इस बात को समझें कि और बाब इख्तियार हैं। मैंने बारहा वज़ीर साहब से कहा है कि एक लाइन की तरमीम चाहिए नैब के ऑर्डिनेंस में कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 रिपील किया जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, कोई तरमीम नहीं चाहिए, एक लाइन चाहिए। एक लाइन और लिख दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहने दें, वो चला लें, ताकि कोई ये ना कहे जी ये अपनी जान बचा रहे थे। ये इस मुल्क की हकीकत है कि हम आज किसी डर, किसी खौफ की वजह से ये तरमीम करने से भी कासिर हैं। वो तरमीम जिसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। जब तक ये इदारा है नैब का, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करें, इस इदारे को ख़त्म करें, इस इदारे की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें कि जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने पिछले 24 साल में कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है, कितने केस बने हैं, उन केसों की हकीकत क्या है। ये चेयरमैन नैब साहब की जिम्मेदारी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएं, आईओ को वहाँ बुलाएं, उनके सामने ये केस रखें कि जनाब ये केस आपने बनाया था, आपके दस्तखत से अदालत भेजा गया है, इसकी क्या हकीकत है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे कि केस सही था या गलत था। ये जो चक्कर है कि आज यहाँ से केस वहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा, तो हमारे अदालतों के चक्कर ख़त्म नहीं हुए। ये तासुर की ये केस आज ख़त्म हो गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यह फैसला होगा कि कौन सी अदालत में भेजा जाएगा, वहाँ पर क्या होगा। तो असर नो हम कल किसी और अदालत में खड़े होंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसके फैसला कर लें, एक दफ़ा कैमरे लगाएं, अवाम के सामने गवाह बिठाएं, तो एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। जनाब शाहिद साहब ये बताइएगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो खान साहब के जितने केसेस हैं वो भी नेम कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत चलाने चाहिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं कहा। क्या समझते हैं कि खान साहब के तमाम तर केसेस? देखिए, केस वहाँ पर चलता है जहाँ अदालत की जुरिस्डिक्शन होती है। इस अदालत ने फैसला किया कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो किसी और अदालत में चल सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो केस हों, सियासी लोगों पर जो केस बनते हैं, उनके हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो एक ही जमात को ख़त्म करने के सारे प्लान बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बजट आ रहा है। बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया गया? क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क की मईशत का जायज़ा लें, फिर आपको हकीकत समझ आएगी कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क आज वो मुल्क है जो सूद के अलावा और सूद का एक हिस्सा भी कर्जे लेकर अदा करता है। आपने जो रिलीफ देनी आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर, उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मज़ीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है।
अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपए का बोझ डालना पड़ेगा। शाह साहब तो ये पता नहीं है कि अपना मैशत क्या है या कुछ है। पाकिस्तान के अवाम को वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीज़ें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है। 2 चीज़ें, तो इन 2 चीज़ों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? जी, अवाम को समझ बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और ज़िम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नज़र आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को ख़त्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निज़ाम मुल्क में ख़त्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है? मैं इस इदारे के रोज़मर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूँ। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या हैं। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं, या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख ले। सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। और ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF केस नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट पेश कर सकता है? यार, ये बात हर रोज़ विदेश खजाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके बड़े मजमे में मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, अयूब खान साहब, किसी का आपसे कोई रब्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। अच्छा अवध साहब, ये बता दें, 2 मई से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है PTM हुकूमत जो इमरान खान से डबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी कि नहीं होगी? सियासी मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है, और आज की मुल्क की ज़रूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 9 मई के वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं। क्या मुल्क के
मुल्क के फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग, इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तंसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहाँ पर चला जाएगा। तो अदालत वहाँ पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फ़ौज की तंसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा।